Yeah, here's the next question. Again, this is a bit conceptual question. So they have given one function that is x plus mod y equal to 2y, then y as a function of x is not defined for all real x, continuous at x equal to 0, not differentiable for all x such that dy by dx equal to 1 by 3 for y equal to y less than 0. Okay. Um, Before that, is it differentiable at some point? Either is it a continuous at that point? So you should know the conditions for continuity and differentiability. So what are the conditions for continuity? Conditions for continuity. Condition is LHL should be equal to RHL, that should be equal to the functional value at that point. This is the condition for continuous at that point. If these three things satisfy LHL equal to RHL, that is equal to functional value at that point, then this is treated as a continuous function. If you check here, so let me take the example to make this concept very clear. Let's take a straight line. Let me take a mod x graph. I think you guys are aware of this mod x graph. Cool. This is mod x graph. This is mod x graph. What do you think? Is this continuous or discontinuous? So looks like it is continuously defined for all the values of x. Correct. So how to determine using uh, the the given condition LHL and RHL. So the mod x LHL, looks like, see, look at the mod x graph. At x equal to 0 there is some you know definition change. ये सो ऊपर से नीचे आ रहा था, इसके बाद नीचे से ऊपर आने लगा, नीचे से ऊपर जाने लगा. ठीक है. तो सस्पिशियस पॉइंट क्या बनता है मॉड एक्स ग्राफ पे? तो जीरो. क्या बनती है? जीरो. जीरो पे यू नीड टू चेक. सो जीरो पे आप लोग चेक किए तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो. सो एक्स इक्वल टू जीरो एल एच एल क्या होता है? मॉड एक्स का दो डेफिनेशन रहता है ना, पता है तुम लोगों को? मॉड एक्स का it is x when x is greater than or equal to 0, it is minus x when x is less than 0. तो x एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो तुम लोग चेक किए तो ये क्या बनता है? लिमिट ऑफ mod x when x tends to LHL जीरो माइनस, राइट? जीरो माइनस. तो इसका आंसर है लिमिट ऑफ जीरो माइनस लेस देन जीरो रहा तो जीरो माइनस, तो इसका आंसर है माइनस एक्स. ठीक है. तो माइनस एक्स पे तुम लोग पुट किए तो इट इज जीरो. करेक्ट. इन द सेम वे लिमिट ऑफ mod x when x tends to जीरो प्लस, राइट? जीरो प्लस पे फंक्शन का डेफिनेशन है प्लस एक्स, सो दिस इज प्लस एक्स. सो उसको मैं जीरो पुट किए तो दिस इज जीरो. सो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल. एंड what is the functional value at x equal to 0? 0 पे ये again x is nothing but 0. So LHL equal to RHL equal to f of a. So mod x is continuous at x equal to a. You don't have to check for other points because for other points it's like a polynomial function, a linear function. So polynomial functions are always continuous. Okay. This is about the continuity.
Let's investigate more on differentiability. Dif- differentiability. Okay, तो क्या करें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए व्हाट यू हैव टू चेक इज, यू हैव टू चेक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विथ राइट हैंड डेरिवेटिव. कुछ नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ ये नहीं है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट. डेरिवेटिव फाइंड करना तो आप लोगों को पता है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का उतना ही. ठीक है, करेंगे. डेल्टा एक्स को मैं सॉरी डेल्टा एक्स मॉड एक्स का ही ये लेंगे एग्जांपल. मॉड एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है देखते हैं. लेफ्ट हैंड को एल एच डी कहते हैं और राइट हैंड को आर एच डी कहते हैं. ठीक है, एल एच डी कैलकुलेट करेंगे इसका मॉड एक्स का. तो मॉड एक्स का डेफिनेशन एल एच डी मतलब जो पॉइंट कहाँ लिए एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक कर रहे हैं ना तुम लोग. तो एल एच डी मतलब जीरो लेस देन जीरो रहा तो क्या है डेफिनेशन? लेस देन जीरो रहा तो डेफिनेशन इज माइनस एक्स. करेक्ट. ओके, सो इसका डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो लेफ्ट हैंड लिए मैं हमने लेफ्ट हैंड ऑफ दिस पॉइंट. सो अभी डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड ऑफ एक्स मतलब mod x at x equal to 0 is minus x. Cool. d by dx of माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1. सो आर एच डी क्या बनती है? आर एच डी इज डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड जीरो से लिटिल मोर देन जीरो. सो दैट विल बी definition is x. So d by dx is 1. So LHD is -1, RHD is +1. So LHD is not equal to RHD. So mod x is not differentiable. Not differentiable at x equal to 0. Understood? कुछ नहीं तो वापस रिपीट करेंगे. सो कंडीशंस फॉर द कंटिन्यूटी इज LHL should be equal to RHL, that should be equal to functional value at that point. सो ये सब कुछ चेक किया हम कहाँ? x इक्वल टू 0 पे, 0,0 पे. अब हमें हमें दिख भी रहा है ये कंटिन्यूस है, नहीं कहाँ भी मैं पेन उठा नहीं रहा हूँ तो टू ड्रॉ दिस लाइन. ठीक है, तो दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. आई मीन जीरो मैंने चेक किया क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, तो ये इससे क्लैरिफाई होता है हमें एल एच एल भी जीरो आया हमारा, आर एच एल भी जीरो आया और फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट एट x equal to 0 is that is also 0. So this mod x is continuous at x equal to ये क्लियर हुआ. उसके बाद हम क्या चेक किया? डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया इस फंक्शन का. डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं चेक करने के लिए यू शुड check the left hand derivative and right hand derivative. You have calculated left hand derivative. The left hand derivative is nothing but वो फंक्शन का डेरिवेटिव at left side of that point, so left side of this point is the function definition is minus x. So minus x लिया, minus d by dx of minus x is -1. राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब राइट हैंड साइड का डेफिनेशन लिया, डेफिनेशन मतलब फंक्शन डेफिनेशन लिया मैंने d by dx of x. सो उसका डेरिवेटिव हुआ 1. सो -1 इज क्लियरली नॉट इक्वल टू +1. सो एल एच डी इक्वल नहीं होता आर एच डी के कंपेयर किए तो. सो बिकॉज ऑफ दैट mod x is not differentiable at x equal to 0. Cool. If you want you can note this point. I'm going to erase this thing to solve this question. Okay, cool. तो मैं और एक बात कहना चाहता हूँ तुम लोगों को इधर ही. अभी ये देखिए शार्प एज बोलते हैं इसको, शार्प एज. कभी भी इफ यू गेट अ शार्प एज इन द फंक्शंस, द फंक्शन विल उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं रहता. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
to make. Okay, we have not yet started our question. So you guys have to think over that concept. I already mentioned like जहाँ जहाँ शार्प एज रहता है फंक्शन में, फंक्शन के ग्राफ में, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहती. ठीक है, तो उसको तुम लोग इन्वेस्टिगेट करो. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन. व्हाट दे अगेन एक्स प्लस मॉड वाई. तो उनका ऑप्शंस क्या है हमारा? नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स. ये तो पता चलता है डिफाइन है कि नहीं, हमें पता चलता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस. कंटिन्यूअस है कि नहीं, अभी कंटिन्यूअस के लिए हम क्या क्या चेक करने का वो बताया मैंने. नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल के लिए डिफरेंशिएबल कब होता है कब नहीं होता उसका भी बारे में बताया मैंने. यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, so let's take the question. What is the question? The function they were given is x plus x plus mod y equal to 2y. So this has two definitions. Again mod y, function mod y है तो दो definition रहता है. ये होता है x plus y equal to 2y when y is greater than or equal to 0. So ये बनती है x minus y equal to 2y when y is less than 0. So y is less than 0 तो minus y होता है, y greater than 0 रहा तो प्लस y होता है. दैट्स इट. सो इसको कैलकुलेट किए तो ये क्या बनती है? x इक्वल टू y. ये कैलकुलेट किए तो इसका आंसर बनता है x इक्वल टू, ये इधर y गया तो 3y. सो आई गॉट टू फंक्शंस हियर. सो y ग्रेटर देन 0 रहा तो एक डेफिनेशन है. लेट मी ड्रा दिस इन अ ग्राफ. तो x y ग्रेटर देन 0 रहा तो y इक्वल टू x ग्राफ. सो y ग्रेटर देन 0 तो y पॉजिटिव वैल्यूज, y पॉजिटिव रहा तो y इज इक्वल टू x, x इज आल्सो पॉजिटिव. करेक्ट. सो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये y इक्वल टू x ग्राफ. इट्स अ लीनियर ग्राफ. यू कैन सी y इक्वल टू x इज अ लीनियर ग्राफ whose slope is 45 degree. So that will start from the origin with a 45 degree slope. क्यों? क्योंकि tan theta is 1 here. Cool. Okay, this is about right hand side of x equal to 0. Now x इधर क्या बनेगा? So that y equal to, so इधर क्या बनती है? y equal to x equal to 3y is enough. Now you have to put the values of y here. So you know the domain y is less than 0. y less than 0 values put करते जाने का तुम लोग. So y 0 पे 0 put नहीं कर सकते. y is less than 0. So y -1 -2 पुट किए तो x क्या बनती है? y -1 पे x -3. ओके, -3. y -2 पे x -6. तो मुझे लगता है ऐसे कुछ आता है. ठीक है, cool, a nice graph. Now okay, clearly if you see the graph, this one graph of this, so we'll verify one, options not defined for all real x. No, it is wrong. It is defined for all real x. All the x we have the values. There is no breakpoints. There are no breaks here. I can see clear, neat, continuous graph. Continuous at x equal to 0. This is also correct. Continuous at x equal to 0. x equal to 0 पे continuous है ये. हाँ, यही आंसर है. तो और वेरीफाई करेंगे. रुको रुको. नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स. हाँ देखिए, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स. सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD RHD चेक करने के लिए बोला नहीं मैंने. तो LHD RHD देखेंगे थोड़ा. LHD एंड RHD. RHD मतलब क्या? LHD मतलब RHD मतलब क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. सो कहाँ चेक करेंगे तुम लोग? ये देखिए x के 0 पे x प्लस x माइनस, तभी फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो x 0 पे करने का ना तुम लोग,
LHD एंड RHD x इक्वल टू 0, LHD क्या बनती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, तो x लेस देन 0 रहा तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है x इक्वल टू 3y और y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x नहीं 1/3x, सो 1 डिवाइडेड बाई 3x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो RH इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1/3x का डिफरेंशिएशन इज 1/3, सो RHT का ये क्या हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ, RHT पे फंक्शन डेफिनेशन क्या है, RHT मतलब राइट हैंड ऑफ जीरो, राइट हैंड ऑफ जीरो x इक्वल टू y, सो दिस इज y इक्वल टू x, y के जगह में क्या है x है, d बाई डी एक्स ऑफ दिस वन इज 1, राइट। तो LHD is not equal to RHD, so this is not differentiable at point 0, this is a edge sharp edge, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है x इक्वल टू 0, क्यों, LHD is not equal to RHD, so this is one point to make, क्योंकि we are checking the possibilities for this question, okay, and not differentiable for all real x, ऑल रियल एक्स नहीं, ओनली एक्स, एक्स के लिए उतना ही डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इफ यू गो राइट साइड ऑफ द एक्स, राइट साइड ऑफ द एक्स, you know, for that it is differentiable, see it is continuous everywhere and there are no sharp edges, so it is continuous everywhere, so and the derivative answer is 1, ठीक है, at right hand side. So if you go left hand side of 0, so the derivative is defined, that is 1/3x, so 1/3x का डेरिवेटिव है 1/3, so answer is 1/3, cool, y less than 0 रहा तो ठीक है, at 0 उतना it is differentiable नहीं, so not differentiable for all x is wrong, not differentiable for x equal to 0, हाँ तभी करेक्ट होता था, ठीक है। अभी सच दैट dy by dx equal to 1/3 for y less than 3, हाँ y less than 3, ये y LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो ये 1/3 ये भी करेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट लग रहा है मुझे, बी एंड डी। तो ये नॉट कंटिन्यूस करके कुछ देने का तो उन लोग, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए तो इफ यू मार्क बी आर डी विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट। आई थिंक आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, या इधर ये छोड़ के आंसर भी क्या हो सकते हैं, ऑप्शन ई लाइक नहीं, इसका और आंसर्स क्या क्या बन सकते हैं, सच दैट dy by dx is equal to 1 for y greater than 0, राइट, दिख रहा है हमें स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप मतलब dy by dx, dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा फॉर y इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या बन सकता है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये एक ऑप्शन बना इसका, इसका आंसर सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस इन दी ABCD। और एक ऑप्शन क्या बन सकता है, स्टार करके लिखता हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 2, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, कूल, ओके दैट्स इट। सो ये दोनों भी नोट कीजिए इसके साथ, कंटिन्यूस भी है x इक्वल टू 0 बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और dy बाई डी एक्स मोर देन 0 पे क्या बनता है, लेस देन 0 पे क्या बनता है, मोर देन 0 पे, मोर देन 0 0 पॉइंट लिए हैं तो मोर देन 0 करके RHD करके बोल रहे, तो गिवन बेस्ड ऑन द गिवन पॉइंट्स यू हैव टू चेक LHD एंड RHD to confirm whether the given function is continuous or no. I think I made it clear. So there are two answers for this question. Maybe printing mistake हुआ होगा. Okay, ठीक है. No issues. I think you should understand the concept. That's it. Let's go to the next question. Okay. F of x they have given, it is x minus 4 divided by 2 root of x, then f dash of 0. Simple silly question है, direct question है, तो इसको कैसे करेंगे, dy by dx dy by dx फाइंड आउट करने का, dy by dx फाइंड आउट करने के बाद 0 पे उसका वैल्यू क्या होगा वो देखने का, उतना ही तो करेंगे। सो dy by dx इक्वल टू x minus 4 divided by 2 root of x, dy by dx ऑफ, ऐसा वापस लिखिए मत while solving in the competitive exams, do it directly,
ओके, तो कि ये क्या हुआ, x-4, तो इसको सेपरेट लिखे छोड़ता हूं मैं। नहीं तो ये क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं इधर। क्वेश्चन रूल अप्लाई करूं, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई किए तो 2√x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमर x माइनस x-4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2√x का, ओनली रूट एक्स का 1/2 तो बाहर लिया हूं मैं, तो ये क्यों लिया मैं वापस, गलती हुआ मेरा। ठीक है, तो √x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर का और माइनस ऊपर का वैसे ही रखने का, और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे का, तो ये डिफरेंशिएशन नीचे का किया तो 2√x डिवाइडेड बाय √x होल स्क्वायर इज x। कुल पुट करके छोड़िए, क्या 0 पुट किया तो रूट ऑफ एक्स इज 0 माइनस, क्या हुआ ये, गलत किया क्या काम, x-4, 0 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 1 divided by 0 is infinity, here also 1 divided by 0 is infinity। तो तो सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ओके, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, √x का होता है 0 माइनस ये 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 1/d0 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 0, सो ये होता है अनडिफाइंड, डजंट एग्जिस्ट। 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना, सो डजंट एग्जिस्ट नहीं, अनडिफाइंड, सो दिस इज डजंट एग्जिस्ट। इसको तुम लोग ये चेन रूल आपको, ये सॉरी क्वेश्चन रूल आपको पता चलेगा, ये यू लोग तुम लोग भी कर सकते हो, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं ये चीज़ के ऊपर ध्यान लेना चाहता हूँ आप लोगों का, डजंट एग्जिस्ट, तो क्या रहा है इधर, डजंट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है, x-4 डिवाइड 2√x में क्या हो रहा है तकलीफ, तो लेट्स सी इट इन द ग्राफ, लेट मी शो यू इन दैट इन द ग्राफ। ओके, सो क्या था फंक्शन, x-4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट पे x-4 डिवाइडेड बाय 2 रूट का यार, इधर है रूट x, देखिए दिस इज द फंक्शन, करेक्ट है। तो इफ यू ऑब्जर्व दी एट एफ डैश एक्स का, एफ ऑफ जीरो ही एग्जिस्ट नहीं करती, देखिए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, सो एक्स इक्वल टू 0 पे इट इज गोइंग टू इंफिनिटी, ये देखिए ये कहाँ भी टच नहीं करता ग्राफ, तो जूम सी पर 1500 को भी ये टच नहीं करता, कितना भी ज्यादा लिया तो भी ये टच नहीं करता, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू इंफिनिटी, सो एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज गोइंग टू इंफिनिटी। तो हम क्या किए वो पता चला आपको, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं, जैसे tan थीटा tan 90 वैसे, ठीक है, सो दिस इज डजंट एग्जिस्ट। कूल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If f dash of x is equal to sine of log x and y equal to f of some function, then dy by dx, तो क्या पूछे हमें, dy by dx को पूछे है, y कहाँ है, y इधर है, और f डैश को दिए है, तो ठीक है डरना नहीं, देखते हैं y के जगह में dy बाई जो y है हमारा इधर लिखेंगे उसको, सो इसको क्या होता है dy बाई dx, मतलब y के बदले में क्या, f ऑफ y, तो ये फंक्शन है नहीं, f ऑफ
2x plus 3 divided by 3 minus 2x. क्लियर? डिवाइडेड बाय dx. तो इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे. एफ ऑफ सम फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट विल बिकम एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एक्स के जगह में क्या, यही सब कुछ. तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x इनटू, ये चेन रूल अप्लाई होता है. कंपोजिट फंक्शन है, अंदर एक रैशनल फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यू हैव टू यूज द क्वोशिएंट रूल. द क्वोशिएंट रूल इज 3 minus 2x into differentiation of upper, that will be 2 plus 2x plus 3 into differentiation of lower, so that will be minus 2. ठीक है, divided by 3, divided by 3 minus 2x whole square. ठीक है. नाउ एफ डैश ऑफ, इसको क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स ही हैज गिवन. यस, एफ डैश ऑफ एक्स इज साइन ऑफ लॉग एक्स ही हैज गिवन. तो एक्स के जगह में हमारा इतना सब कुछ है, दैट्स इट. ठीक है, तो एक्स की जगह में हमारे एफ डैश ऑफ एक्स हैज ऑलरेडी गिवन. व्हाट इज दैट? दैट इज साइन ऑफ लॉग एक्स. तो एक्स के बदले में उधर एक्स है, इधर एक्स है, हमें क्या हमें चाहिए, एफ डैश ऑफ सम वैल्यू. सो एक्स के जगह में इतना सारा है, इतना सारा एक्स में डाल के छोड़ेंगे. ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स मतलब साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स नहीं. ठीक है, साइन ऑफ लॉग ऑफ तेरे ब्रैकेट्स. तो लॉग ऑफ एक्स, एक्स के जगह में क्या है इधर, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x. ठीक है, इनटू एक ब्रैकेट में. ठीक है, तो 3 माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होता है, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4x प्लस 6. ठीक है, सो 2 3 जा 6 इज माइनस 4x, ये माइनस 4x प्लस, नहीं ये भी माइनस, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x दी होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन होता है 6 माइनस 4x से प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हुआ, तो ये बना माइनस 8x डिवाइड बाय 3 माइनस 2x दी होल स्क्वायर. सही है, का तो लपड़ा की क्या काम ही नहीं. साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2x होल स्क्वायर. नीचे भी है, करेक्ट है. 9 sin x, गलत है ऑप्शन, नन ऑफ दिस आता क्या. तो मुझे कोई मैच नहीं हो रहा इधर, तो आई विल पुट नन ऑफ दिस. ठीक है, मेरा कैलकुलेशन तो ठीक लग रहा मुझे. 6 कैंसिल हुआ, 6 के, हाँ 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हुआ, ये 2 जा करेक्ट है, माइनस 8x डिवाइड बाय 3 माइनस 2x होल स्क्वायर इनटू दिस वन. सो साइन ऑफ लॉग एक्स थर्ड लग रहा था मुझे, मगर नहीं, नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स गो अहेड. Okay, this is f of 0 equal to g of 0 and f dash of 0 equal to g6. So there are two functions. क्लियरली पता चलने का तुमको लोगों को, f and g दे आर टू फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव लिए है, उसका भी आंसर दिए है तुमको. एट x equal to 0 दे आर प्लेइंग एट x equal to 0 एंड लिमिट ऑफ x equal to 0 g of x डिवाइड बाय g of x इज गिवन बाय. तो इसको कैसे करने का,
So what you can do is f of x equal to 0 they are given, f of 0 they are given, g of 0 they are given. It's a 0 by 0 फॉर्म. याद है लिमिट का फॉर्म कैसे क्या करते थे हम? तो मुझे यल हॉपिटल क्लियर दिख रहा है इधर. यल हॉपिटल, यल हॉपिटल रूल मतलब ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन. तो ऊपर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स होता है एट एक्स टेंस टू 0. कूल. सो एक्स पुट करके छोड़िए, एफ डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ 0. एफ डैश ऑफ 0 इज 6 डिवाइडेड बाय नीचे का डिफरेंशिएशन, दिस इज ऑफ 6, दिस इज 1, दैट्स इट. ठीक है. ये यल हॉपिटल रूल के ऊपर लिमिट का क्वेश्चन है. 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म रूल तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? यल हॉपिटल रूल. यल हॉपिटल रूल अप्लाई किया. ठीक है. यल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद आई गॉट दिस थिंग, सो सब्स्टिट्यूट किया, आई गॉट द आंसर. दैट्स इट. तो तुम लोग चेन रूल, चेन क्वोशिएंट रूल नहीं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर. यूज द यल हॉपिटल रूल एंड गेट द आंसर. दैट्स इट. Next question, this one. If f of a equal to 2, f dash of a equal to 1, g of a equal to -1 and g dash of a equal to 2, then the value of, again लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है. तो पुट करके छोड़िए, g of x एट x equal to a, g of a into f of a. तो पुट करके देखो मैं. हाँ, मुझे लिमिट का क्वेश्चन दिखा तो दिमाग में, मेरे दिमाग में तो हमेशा एल हॉपिटल रूल आता है. एल हॉपिटल रूल कब आता है? एल हॉपिटल रूल इफ दैट इज फ्रैक्शंस, सम फंक्शन बाय फंक्शन, फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, फंक्शन बाय फंक्शन कुछ ऐसे रहा तो मुझे मतलब आप लोगों के दिमाग में क्या आने का? यल हॉपिटल रूल. यल हॉपिटल रूल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अंडरस्टूड? इफ यू वांट, यू कैन नोट दिस. फंक्शन बाय फंक्शन रहा तो यल हॉपिटल रूल एक बार चेक करके आगे बढ़िए. ठीक है. तो मैं चेक करता हूँ यल हॉपिटल रूल इधर. तो यल हॉपिटल रूल के लिए जो जो दिए वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ. तो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एक्स क्या? जी ऑफ ए. एक्स का वैल्यू क्या है? जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए माइनस ए. तो क्या बनता है? जी ऑफ ए कितना? जी ऑफ ए कहाँ यार? हाँ, जी ऑफ ए -1, -1 इंटू एफ ऑफ ए कितना? 2 माइनस जी ऑफ ए कितना? -1 इंटू एफ ऑफ ए 2. तो -2, ये माइनस -2 +2, ये नीचे ये बाई ए माइनस ए 0, 0 बाई 0 फॉर्म. ठीक है. याद आया? 0 बाई 0 फॉर्म रहा तो क्या करेंगे तुम लोग? यल हॉपिटल रूल. ठीक है. यल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे इधर. तो यल हॉपिटल रूल अप्लाई किए तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन. वैसे किए तो क्या होता है? एफ ऑफ ए इज कांस्टेंट हियर, तो टेक आउट दैट एफ ऑफ ए. सो जी ऑफ एक्स इज फंक्शन, सो जी ऑफ एक्स का फंक्शन डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स. ठीक है. माइनस जी ऑफ ए इज कांस्टेंट इन दिस वन. करेक्ट. इधर एफ ऑफ ए कांस्टेंट था, इधर जी ऑफ ए कांस्टेंट है, सम फिक्स नंबर, into f dash of x whole divided by 1. Cool. तो now f of a into g dash of x, f of a is कितना है दिए? नो, x इक्वल टू ए, f of a कितना दिए? 2. g dash of x, g dash of x मतलब g dash of a. ठीक है. x टेंडिंग टू a ना, सो x की जगह में ये डालते हैं. g dash of a is 2 माइनस g of a is -1 into f dash of x, f dash of a, f dash of a is 1. ये आंसर हुआ 4 माइनस ऑफ -1 +1, दिस इज 5. दैट्स इट. नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. डरना नहीं है ऐसे ऐसे चीजों को देख के, कभी कभी भी डरना नहीं. ट्राई टू डिवाइड इट इन पार्ट्स एंड सॉल्व दिस. ओके. आई थिंक आई मेड इट क्लियर. थैंक्स. यू कैन नोट ऑन द आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This looks like, yeah,
This is again based on that continuity, differentiability. See, you have a clear picture in your mind. कब कंटिन्यूस रहता है, कब डिफरेंशिएबल रहता है, कब कंटिन्यूस रहता है, LHL शुड बी इक्वल टू RHL, दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट. कब डिफरेंशिएबल रहता है, वो फंक्शन कंटिन्यूस रहने का प्लस LHD इक्वल टू RHD होने का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होने का, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है. तो चेक करेंगे. फॉर अ रियल वैल्यू नंबर x, लेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू, ये GIF है, बॉक्स x बोलते हैं. Then f of x equal to tan of phi minus x minus phi divided by 1 plus box x whole square is continuous at some x, continuous at all x, but f dash of x doesn't exist. F dash of x exists for all x, but f dash of x doesn't exist. f dash है, दोनों क्या है, गलती हुआ है क्या, f dash दोनों लगा, f dash exist लिखते इधर, f dash doesn't exist लिखते. सॉरी गाइज, मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या. ये f डबल डैश क्या है, f डबल डैश ऑफ x डजंट एग्जिस्ट. तो लास्ट ऑप्शन इज डी, इज ये भी f डबल डैश क्या है, डबल डैश. अच्छे से लिखता हूँ, रुको यार, ये f डबल डैश ऑफ x, ठीक है, f डबल डैश ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल x इक्वल टू फॉर ऑल x. तो ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एनालाइज करने के लिए चलो कीजिए. tan ऑफ फाइव माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बॉक्स एक्स होल स्क्वायर. तो पहले इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या दिखता है तुम लोगों को इस इधर से. तो एक ब्रैकेट में जो है, बॉक्स में उतना ही, बॉक्स में जो है वो उतना ही एनालाइज करने की ट्राई कीजिए. एक्स माइनस पाई क्या हो सकता है, एक्स कैन टेक एनी वैल्यू. हाँ, फॉर ऑल रियल नंबर ही हैज मेंशन्ड, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स कैन टेक एनी वैल्यू. तो कितना भी वैल्यू, सम 10.5 लिया मैंने, आई टुक सम रैंडम वैल्यू, 10.5 माइनस 3.4 माइनस 3.142, कितना आता है इसका आंसर, 10.5 3.142, सो 6 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आता है कुछ 6.1. सो बॉक्स ऑफ 6.1 इज आंसर इज 6 अगेन. ठीक है, कितना भी नंबर लो, कितना भी माइनस वैल्यू लो, माइनस 10 10.5 लिए तो इसका आंसर क्या आएगा, -10 -3 -13 -14 -13 पॉइंट कुछ होगा, -13 पॉइंट का आंसर है -13.5 कुछ, कितना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर डिजिट. सो -13.5 का बॉक्स किए तो क्या आता है, हमें -14. तो कितना भी वैल्यू है तुम लोग, कितना भी डेसिमल, कितना भी एक्स लिए तो भी इसका आंसर आ जाएगा बाहर, इंटीजर आ जाएगा. क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर आएगा, आएगा लिखने का नहीं. तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर रहता है, इंटीजर -1 -2 -3 0 1 2 3 4 रहता है. सो ये इंटीजर इनटू पाई का आंसर क्या होता है, क्या होता है, सोच लो यार. सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, tan ऑफ n पाई, फिर n इज इंटीजर. समझ में आ रहा तुम लोगों को, ठीक है. तो tan ऑफ n पाई, tan ऑफ पाई इज, n को 1 लिए तो tan ऑफ पाई इज 0, tan ऑफ 0 इज, n को 0 लिए तो tan ऑफ 0 इज 0, tan ऑफ 2 पाई इज 0, tan ऑफ 3 पाई इज 0. सो दिस इज 0 ऑलवेज. गॉट इट. ये नीचे का, तो ये ऊपर का हमने चेक किया, ये हमेशा 0 ही. ये नीचे का एक चेक करेंगे, नीचे 0/0 नहीं होने का, इधर ये सम फाइनाइट वैल्यू होने का. 0/0 रहा तो अलग सोचना पड़ेगा हमें, और कुछ अनडिफाइंड आया तो अलग सोचना पड़ेगा. तो अभी नीचे का देखेंगे, ये समझ में आया ये कैसे ये एनालिसिस किया हमने.
x माइनस 5 बॉक्स अब कौन सा भी वैल्यू रहा तो भी आउटपुट क्या आएगा तुम लोगों को इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। कौन सा भी फंक्शन ले लो तुम, तो आउटपुट क्या आएगा, तो हमेशा इंटीजर ही। नीचे का क्या है, 1 प्लस बॉक्स एक्स होल स्क्वायर, बॉक्स एक्स का हमेशा इंटीजर आएगा, माइनस आया तो इधर नीचे का आप लोग देखें तो ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर शुडंट बी इक्वल टू 1, सॉरी -1। क्यों -1 बना, तो ये अनडिफाइंड होता है, ये कभी भी -1 होने का नहीं। थिंक ओवर, पॉज अ बिट एंड थिंक ओवर दिस वन। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कभी स्क्वायर माइनस हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, दिस इज कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो नीचे नीचे ये 0 होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ये हमेशा कांस्टेंट फंक्शन जैसे दिख रहा है मुझे, हमेशा जीरो, हमेशा जीरो। सो कंटिन्यूअस एट सम एक्स इक्वल टू जीरो, continuous at some x equal to 0, no, it is continuous everywhere, this is wrong, continuous at all x but f dash of x doesn't exist। क्यों नहीं, f dash of x क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, it exists। कैसे एग्जिस्ट करेगा, LSD RSD लीजिए, कौन सा भी पॉइंट लीजिए, LSD RSD दोनों सेम रहेगा। सो इसके लिए f dash of x exist, f dash of x exist for all x but f double dash doesn't exist, f double dash x तो नया टर्म जैसे दिख रहा होगा आपको, f double dash x, f double dash x मतलब डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन डजंट एग्जिस्ट बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। इसके डिस्कस करने से पहले विल लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस वन, ठीक है, देखते हैं क्या था ग्राफ। tan ऑफ पाई, पाई को कैसे लिखे यार, यस पाई, tan ऑफ पाई, पाई के अंदर बॉक्स के अंदर, बॉक्स मतलब फ्लोर लिखना पड़ेगा इधर, फ्लोर, फ्लोर ऑफ, फ्लोर के अंदर क्या दिए, x माइनस पाई, नहीं x माइनस पाई, x माइनस पाई, cool, 5 into floor of x minus 5 whole divided by क्या दिए, 1 plus floor of x the whole square, floor of x the whole square, ठीक है, यस। इसका ग्राफ कहाँ है यार, बहुत जूम किया था मैंने लास्ट इसको, ये देखिए, कैन यू ऑब्जर्व द ग्रीन लाइन, द ग्रीन लाइन इज the green line, you can observe the green line, right? So it is always zero, always zero, so always zero, it's a straight line, you know, it's nothing but x axis, you can say, right, बोल भी सकते हैं नहीं, हाँ x axis, x axis डिफरेंशिएबल है, राइट, x axis y इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इक्वल टू सम जीरो, ये पूरा जीरो होता है, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, उसका डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज y अगेन जीरो होती है, सेकंड डिफरेंशिएशन इज जीरो, सो सेकंड डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होता है। ये इधर दिख रहा है, कितना जूम करूं मैं, ग्रीन लाइन दिख रहा है ना आपको, कूल, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन। इसको फ्लोर करके लिखते हैं, मॉड एक्स को, आई मीन बॉक्स एक्स को, ठीक है, ओके। तो वापस आएंगे इधर, एफ डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, यही करेक्ट है, हाँ ठीक है,
एग्जिस्ट होता है, बट एफ डबल डैश एग्जिस्ट नहीं होता, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो एफ डैश एग्जिस्ट, इधर एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, वो भी करेक्ट है, मगर उसके साथ और एक कंडीशन दीजिए ना, दिस मेड अस टू deselect, no, this condition made us to select, this made us to not to select this on this option C. So the final ultimate option is option D. Okay, thank you.